This is my health update videos. First of all, how am I? Where am I getting treated? Is do I really have IBD? Am I on biologics? Can I work and have a normal life with welcome back to my channel. I hope आप बहुत ही अच्छे होंगे. First of all, I'm so sorry that I could not put out videos after say December or something. I wasn't well and मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ली थी यूट्यूब से एंड इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह से so that I could recover and come back little stronger, you can say. And this is the most awaited video of my channel and requested as well. This is my health update video. So last year, एक साल पहले एक डेढ़ साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी on my Crohn's disease journey, how I got detected and uveitis and all those stuff. And 3.2k of you have watched that video, and thank you so much for showing so much of support and helping me out as well. I felt for the very first time that I wasn't alone. मैं आज क्वेश्चन लेके बैठी हूँ so that I don't miss out on any of the question that you may have in your mind. I would like to cover all of those things. So without any further ado, let's get started. First of all, how am I? So last year से definitely मैं बेटर हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बहुत डिटोरिएटेड हूँ. सो टू साइड्स टू इट इज पिछले साल में तो मुझे पता ही नहीं था मुझे हो क्या रहा था. And I was very shocked to hear about this term as IBD, Crohn's disease. ये सब मुझे पता ही नहीं था actually, because ना कभी मैं अपने फैमिली में सुनी थी, ना अपने फ्रेंड्स में सुनी थी, या फिर नेबर वगैरह में मैं कभी नहीं सुनी थी ये चीज़ें. सो फॉर मी इट वाज वेरी वेरी न्यू. टेस्ट्स के थ्रू, बायोमार्कर्स के थ्रू मुझे पता चला था दैट आई हैव सर्टन कंडीशन, बट बायोप्सीज वर नॉट शोइंग अप, whether I have IBD or not. And that's where I think it might have gone wrong from the perspective कि शायद आज मैं बहुत बेटर पोजीशन में हो सकती थी, बट probably the guidance that I got from my doctor wasn't correct enough. And that's why मैं एक second opinion के लिए हैदराबाद में हूँ फिलहाल. I'll speak more on that as well, but yes, मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, बट और बेटर हो सकती थी. फिलहाल थोड़ा डिटोरिएशन दिखा है, बट दैट कैन बी मैनेज्ड आई गेस इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. वो भी टैकल हो सकता है, वो भी मैनेज किया जा सकता है. सो आई एम नॉट दैट इन अ वेरी बैड शेप जब जहाँ मुझे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड ऑल दो स्टफ. सो येस, सो आई एम डूइंग बेटर, यू कैन से. वेयर एम आई आफ्टर 1 year of treatment? Like I said, मिस इन्फॉर्मेशन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आपका गलत हो तो आपका होप जो है वो डाउनवर्ड्स जाता है. तो इफ आई से दैट वेयर एम आई आफ्टर 1 year ऑफ ट्रीटमेंट, नॉट गुड, बिकॉज मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग. जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, जो जिन डॉक्टर के ऊपर मैं डिपेंडेंट थी, अपरेंटली ही डिड नॉट गाइड मी इन द करेक्ट वे कि क्या करना चाहिए था या फिर क्या करना चाहिए एक आईबीडी पेशेंट को, एक क्रोन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट को, बिकॉज ही वाज हेविली invested into colonoscopies and biopsies and all those stuff. He didn't even took care कि मुझे सीटी स्कैन कराना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ एडवांस्ड टेस्ट बायोमार्कर्स अवेलेबल है मार्केट में जो उन्होंने किया ही नहीं. सो बट said that you have Crohn's. So I had that in mind कि मुझे एक सेकेंड ओपिनियन तो डेफिनेटली लेना है, लेकिन कहाँ से लेना है? One of you who stepped into my life as a God, I'll say that. And if you are watching this video, Swagatika, this is for you. She's from Orissa and she helped me out for the second opinion. अगर वो नहीं आई होती मेरे लाइफ में तो शायद मुझे ये सेकंड लाइफ भी नहीं मिला होता. And that is something that I have to accept, that without her guidance मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती.
So yes, now the next question is, do I really have IBD? IBD है inflammatory bowel disease. क्या ये मुझे है? तो यस आई हैव, एंड ये मुझे सेकंड ओपिनियन में मुझे पता चला है that I do have IBD. So where am I getting treated? By the way, I'm getting treated in AIG Hyderabad, that is Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad, which is like one of the best राइट नाउ इन इंडिया. अगर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या गैस्ट्रिक एसेंट्रिक कुछ भी इश्यूज हो रहा हो अभी, तो यू कैन गेट योर सेल्फ चेकड हेयर. आई नो दैट यहाँ पे ट्रैवल करना, रहना, टेस्ट कुड बी एक्सपेंसिव, बट अगर आप यहाँ पे आते हो आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाता है. बिकॉज सी आई गॉट माई सेल्फ ट्रीटेड फॉर 1 year, बट जब मैं यहाँ पे आके दोबारा से ये फ्रॉम स्क्रैच या ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, तो मुझे ये समझ आया कि एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या प्लान होना कितना ज़रूरी है. एंड क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड आईबीडी सेंटर है, एंड देर आर लॉट ऑफ आईबीडी स्पेशलिस्ट्स ओवर हियर, सो इट बिकम्स easier for you to understand what is it all about, how you can manage and all those stuff. Yeah, so मैं अभी एआईजी हैदराबाद में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, and I am very very happy with the line of treatment that I have been proposed with. And मेरे डॉक्टर का नाम है रूपा बैनर्जी, who is also director of IBD center in AIG हैदराबाद. So उनका अपॉइंटमेंट आपको लेके आना पड़ता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है. And am I on biologics? No, I am not on biologics. मैं 5A से में थी, and I used to take one medicine called Vega's OD. But then वो मेरा 2G चला है, and then 1G में आ गई थी, मैं remission में थी. That was what I was told. कि मैं remission में हूँ, but actually मैं remission में नहीं थी. Luckily I'm still not on biologics. बट क्या मुझे फ्यूचर में बायोलॉजिक्स लग सकता है? मुझे नहीं पता. इसका आंसर मुझे आइडिया है नहीं कि मुझे लग सकता है कि नहीं. बट क्या सबको ज़रूरत पड़ता है? कुछ परसेंटेज लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अभी बहुत सारा अच्छा मेडिसिन भी आ गया है विच इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजिक्स, बट विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ बायोलॉजिक्स. सो येस, आई एम नॉट ऑन बायोलॉजिक्स करेंटली. मेरे मेरे केस में मेरा आईबीडी इज़ कम्प्लीटली अननोन टिल नाउ. एंड वो कैसे, एंड आई थिंक जो मुझे पता चला है यहाँ पे कि बहुत किसी को ये होता है. आई थिंक इट्स कॉल्ड इडियोपैथी और समथिंग, जहाँ पे एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि क्यों है. एंड मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, आई हैव सीन 12 years old, 10 years old, 17 years old, 20 years old, जिनके कोई फैमिली हिस्ट्री में आईबीडी नहीं था, उनको भी है. जो कभी बाहर में खाना नहीं खाया है, उनको भी है. सो देर इज नो रीजन टू इट ऑनेस्टली कि क्यों है और क्यों ये अलार्मिंग रेट में इंडिया में बढ़ता जा रहा है. इज दैट अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, फूड हैबिट्स, कुड बी ऑफ एनीथिंग, बट क्या है वो अभी तक नहीं पता चला है. सो या, तो मैं ये सीआरपी सीबीसी आयरन ये तो मैं टेस्ट करवाती थी. और मैं जब यहाँ पे आई, क्योंकि मेरा वेन एक ही हाथ में मिलता है, तो आई वॉज लिटिल कंसर्न कि वो बहुत एनेस्थेशिया वगैरह अगर गया कभी तो दिक्कत हो जाएगा. तो आई डिड नॉट गेट माई सेल्फ चेक्ड आफ्टर जनवरी. एंड जो जनवरी में मेरा सीआरपी था, दैट वाज 2.07, which drastically reduced from 15, yes 15 point something से मुझे 2.07 in 1 year हुआ है. एंड देन हुआ था, सॉरी. एंड देन मेरा कैलकुलेटिंग पहले था 1000+. इस जनवरी में 2026 में हुआ 184, which was lesser than 200. so उसका जो लेवल है ना, आईबीडी है या नहीं है, तो उसका बायोमार्कर्स में भी वो नॉर्मल आया था. ना 2-3 महीने में चेक नहीं करवाई थी, यहाँ पे आकर चेक करा के पता चला मेरा सीआरपी अब है 10.3. मेरा सीबीसी जो था 11.8 अब है 10.7. आयरन जो था 34 अभी है 24. सो ऑफ कोर्स मेरा बायोमार्कर्स ऊपर नीचे गया है. ओके, they suggested me a bunch of tests, or that included endoscopy plus colonoscopy plus intestinal, if I'm not wrong it's called IUS, intestinal ultrasound, जो कि यहीं पे ये एडवांस मशीन अवेलेबल है. जो आपका इंटेस्टाइन है उसका भी यूएसजी हो सकता है, जो नेचुरली या नॉर्मली कोई नॉर्मल पैथोलॉजी में वो भी होता नहीं है. सो इट्स ओनली इन एआईजी हैदराबाद, जहाँ पे आप आके आपका इंटेस्टाइनल
यूएस जो यूएसजी है वो आप करवा सकते हो. सो कंप्लीटली मेरा चेकअप हुआ है फ्रॉम हेयर टिल द बॉटम, सो दैट टू सी दैट कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया है, डू आई हैव एनीथिंग इन माई थ्रोट और इन स्टमक एज वेल और नॉट. सारा टेस्ट हुआ है एंड जो पाया गया है बहुत सुपरफिशियल अल्सर है, बट इट हैज़ नैरोड डाउन. स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया है. शायद ये अगर मुझे पता होता कि डाइट क्या लेना चाहिए, ये नहीं हुआ होता. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड बाय नाउ. नाउ from here one important correlation comes in, is diet. क्या डाइट आपको लेना चाहिए एंड कब क्या लेना चाहिए एंड ऑल दो स्टफ. ऑल दिस वाइल ना मैं ऑफिस में भी अगर जाती थी तो आई यूज्ड टू कैरी दिस लिटिल बॉक्स, जहाँ पे ऐसा बॉक्स जहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स लेके जाती थी, आमंड, काजू एंड किसमिस, अ लिटिल बिट ऑफ दोस, एंड घर से मैं टिफिन बना के लेके जाती थी. बट यहाँ पे आके मुझे कल डाइटिशियन से मिलना पड़ा. आई एम इनटू दिस लो रेसिड्यू डाइट, लो फाइबर डाइट दैट मीन्स. तो इसमें पता चला कि मैं वो खा ही नहीं सकती. उसको ग्राइंड करके या तो उसको भिगो के एंड देन ग्राइंड करके उसका मिल्क जैसे निकल जाएगा उसके साथ मिल्क मिला के, मतलब स्मूदी के साथ मिला के, आई मीन आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, उसको रात भर भिगो के देन ब्लेंड करके उसका जो मिल्क निकलता है उसको कोई स्मूदी में डाल के मैं खा सकती हूँ. दैट इज समथिंग दैट आई कैन हैव. बट मुझे नहीं पता था कि मैं आमंड भिगो के ऐसा डायरेक्टली नहीं खा सकती, या काजू किशमिश में वैसे नहीं खा सकती. तो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि बहुत हेल्दी है वो एक्चुअली वो हेल्दी नहीं था. एंड दिस इज अ पर्पस व्हाई यू शुड कम टू अ डेफिनेट आईबीडी स्पेशलिस्ट वाला जगह जहाँ पे आपका डाइटिशियन भी वो एक्सपीरियंस होल्ड करता हो to give you proper guidance on what to eat, how to eat and when to eat. मैं बहुत टाइम तक 1 साल तक मैं कोई सिट्रस फ्रूट नहीं खाई थी. मुझे पता था कि मुझे सिट्रस फ्रूट जो है सूट नहीं करता. मुझे कल पता चला है कि अगर मुझे पाइनएप्पल पसंद है तो पाइनएप्पल का जूस निकाल के उसको डाइल्यूट करके मुझे खाना है. सो देर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो आपको खाना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट डाइट में रहना पड़ेगा, सो दैट जो मेरा केस है जिसपे स्ट्रिक्चर आ गया है तो हाउ टू डील विद दैट. सो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में फ्रीक्वेंट मील्स थोड़ा 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 करके खाना पड़ेगा द होल डे. एंड समबडी हु वर्क्स 9 to 5 ना, 9 to 5 तो कभी होता ही नहीं है, 12 13 14 घंटा तो हो ही जाता है उसमें. इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर डाइट एंड हैव योर मील्स प्रॉपरली. तो मैं 1 हफ्ते पहले से ऑलरेडी मील प्रेप, मील प्लानिंग ये सब कुछ करके रखती हूँ ऑलरेडी. बट अभी जो मुझे मिला है ना, द थिंग दैट दिस दिस इज व्हाट यू शुड हैव एंड दिस इज व्हाट यू शुड नॉट, एंड आपको पूरा नोट करके रखना पड़ेगा विद टाइम कि कैसे क्या खाना है एंड दो स्टफ. अब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हार्ड बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ आर वर्किंग, एंड हम लोग का वर्किंग आवर्स जो है ना वो बहुत ही सीमित नहीं होता है, वो एक्सीड कर जाता है. एंड हाउ डू वी मैनेज इट टू हैव दिस लंच एंड बीच वाला गैप में जो खाना होता है ना, इधर प्री लंच एंड पोस्ट लंच वाला थिंग. सो वो सारी चीज़ें फिगर आउट करना पड़ेगा इफ आई विश टू लिव इन अ हेल्दी वे. अगर इसको मैनेजेबल रखना है तो हमें वे आउट निकालना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू ऑल हैव टू थिंक एज वेल कि आप जो खा रहे हो क्या आपको उससे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खाना छोड़ दिया था, बट मुझे कल पता चला कि खाना छोड़ना नहीं था, उसको अलग तरीके से खाना था. दैट इज समथिंग दैट आई वाज नॉट गाइडेड विथ. सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आई थिंक यू शुड मीट अ गुड डॉक्टर एंड गुड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो आपको इसमें गाइड करे. सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव योर न्यूट्रिशन इन प्लेस, बिकॉज आपका गट अगर इन्फेक्टेड रहेगा तो आप कितना भी खा लो वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा. बिकॉज लास्ट 1 year में आई मस्ट एडमिट वन थिंग दैट मेरा वेट लॉस नहीं, वेट इंक्रीज हुआ है. सो आई वॉज 53 या 52 लास्ट ईयर. सो राइट नाउ आई एम 57 या 58, सो विच इज गुड.
57 पॉइंट समथिंग एंड 58.2 और समथिंग. सो मेरा वेट इंक्रीज हुआ है. दैट इज बिकॉज मेरा इंटेस्टाइन जो है वो हील हुआ है, बट कुछ कुछ जगह अभी भी हल्का हल्का सा डैमेज हो रखा है जिसके ऊपर आई हैव टू वर्क. एंड विथ टाइम वो बेटर हो जाएगा, बट वो मैनेजेबल ही रहेगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट एंड वर्क टुवर्ड्स योर सेल्फ. Next question that is frequently asked is how is my uveitis? Very well. Um, एक डेढ़ साल में कम बैक नहीं हुआ है. टच वुड. अभी तक तो कम बैक नहीं हुआ है यूवाइटिस का. आई एम रियली डूइंग गुड. अगर आप देयर इज अ हॉस्पिटल कॉल्ड सेफ माई साइट इन दिल्ली. तो वहाँ पे मैं यूआईटी स्पेशलिस्ट को दिखाई थी. एंड पोस्ट विच इट डिड नॉट कम बैक फॉर मी, नॉट इवन आई इन्फेक्शन. और चीज़ें भी मैं बहुत केयरफुली लगाती हूँ, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह, सो दैट इन्फेक्शन ना हो. एंड uveitis has nothing to do with your cosmetics and all those stuff. It is directly linked with the colon. So अगर आपका गट सही है, आपका uveitis भी सही रहेगा. आपका गट खराब है तो uveitis या आंख में पेन वगैरह वगैरह वापस आएगा. एज सिंपल एज दैट. Can I work and have a normal life with IBD? 100%. 100% you can. I'm in my IT profession for the past 14 years now, and I don't see myself retiring anytime soon. तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. नाउ क्योंकि ये इनविजिबल डिजीज है, तो लोगों को बहुत हद तक नहीं पता होता है कि ये क्या है, क्यों ऐसा है, एंड उनको अवेयरनेस का कमी होता है ऑफिस में. You will have to notify your HR, your manager that this is what you are going through. And वहाँ पे आपको सपोर्ट अगर नहीं मिलता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. फॉर मी, मेरे वर्क प्लेस में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द लीडरशिप, फ्रॉम माई CC, फ्रॉम माई मैनेजर, फ्रॉम माई स्टाफिंग मैनेजर एंड ऑल द स्टाफ. सो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है. एंड द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट आई गेट फ्रॉम माई ऑफिस इज समथिंग दैट I am truly blessed with, because ऐसे टाइम में अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो या 100% आप मैनेज कर सकते हो. नॉर्मल लाइफ भी आप लीड कर सकते हो. दिस इज मैनेजेबल, इफ नॉट क्योरेबल, बट इट्स मैनेजेबल. तो आपको मैनेज अगर करना आ गया, सो विल मास्टर इन दैट. हाँ, अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेम खा सकते हो फॉर नेक्स्ट 1 year, 2 year, 3 years, or say 10, 12 years, and if you wish to live, so you can actually lead a very normal life. So yeah, I feel that ये health update video आपको कुछ तरह से help किया होगा, because this is very important for you all to reflect back कि क्या गलत किए हो आपने, in terms of how you have eaten, you have taken your diet, और मेडिसिन क्या ले रहे हो. सबका सेम सिम्टम्स नहीं होता है, सेम इंटेंसिटी में नहीं होता है, सेम कंडीशन में नहीं होता है. ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डराऊं, बट जस्ट creating an awareness that this can be treated as well as it can be managed as well with your normal life, with kids, with work, with every other thing. So um, on a positive note, I would like to end this video that um, I hope that you feel better. And if you have any questions, you can DM me on Instagram, and this is my handle, and you can also put a comment out here. I'm so sorry I could not reply many of you, and that is because I wasn't well at all. कुछ टाइम से मेरा हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा था, and I really wanted to take some break, uh, so I could not respond to many of you. um, but I will try to respond as soon as possible. So, in case you want to write an email, there is an email ID tagged to my YouTube description as well. So, and here's my email ID. You can also drop an email if you want to speak with me and want to know, like, what is the process of AIG consultation और वो सब. मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली लिंक वगैरह मैं डाल दूंगी.
there's nothing called no in this world is what I think. अगर आपका विल पावर है तो डेफिनेटली आप इससे भी निकल जाओगे, बट हाँ, इट विल टेक टाइम। ये क्योंकि क्योरेबल नहीं है बट मैनेजेबल है। इफ big YouTubers like Mr. Beast can manage it for 20 plus years, we can as well. Okay, so definitely इसको ध्यान में रखते हुए I'm ending this video. Let me know in the comment section below if you want to know any other things. Till then, bye.